Students, today we are going to discuss chapter 15, that is plant growth and development, and all the topics are deleted this year from this chapter. Only plant growth regulators is the topic we have to study that. So now come to the plant growth regulators. So what are the plant growth regulators? Actually we have studied in 10th standard also, and I hope you remember the name like auxins, gibberellin, cytokinins. You remember the name of these hormones? So these are known as plant growth regulators. That means they regulate the growth of plant. So they are nothing but simple chemical compounds, you can say, which are secreted, or you can say we are formed in various parts of the plant body, and chemically they are of very different kind. For example, indole compounds. If we talk about the indole compounds, if we go through this slide, you can see easily, here I have written also, these can be indole compounds, that is indole 3 acetic acid, or IAA. You can write it in short like this, IAA. Then adenine derivatives, N6 furfuryl aminopurines, or you can say kinetin, or you can say these can be the derivatives of carotenoids, and the example is like abscisic acid and ABA. Abscisic acid is short form of abscisic acid. Then terpenes, and examples are gibberellic acid, you can write in short GA3, or gaseous ethylene C2H4, you can write like this. And we all know that these plant growth regulators are very much important for the growth and development of the plants. So these plant growth regulators, or you can call them phytohormones also. These are also known as phyto means something pertaining to plant. तो आप इनको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी कह सकते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हो, एंड फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं. तो दीज फॉर्म इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड दे रिक्वायर फॉर द proper development and growth of the plant's body. So on the basis of their functions in the plant body, you can divide these plant growth hormone into two categories, and these two categories are given here. First is the growth promoting hormone. That means these are those hormones which increase the growth. And growth का होने का मतलब है either they are helpful in cell division, वो सेल डिवीजन में हेल्प करें, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करें, वो फ्रूटिंग में हेल्प करें, वो फ्लावरिंग में हेल्प कर सकते हैं, सीड फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं. तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर रिलेटेड टू ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स जो कुछ भी प्लांट्स की बेनिफिट के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस होते हैं, दैट आर known as growth. So that means one category of these hormones are helpful in cell division, cell enlargement, जनरल ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. तो दीज आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स. वी ऑल नो दैट दीज आर helpful in all these things. And there is another category which are, you can say, not helpful in the growth process, but they work opposite. That means they help plant, or you can say they show some negative effect impact on the plant. For example, there are certain hormones, their role is to in response to wounds and stress of biotic and abiotic origin. दैट मीन्स किसी भी तरह का प्लांट को स्ट्रेस है, उस समय वो हार्मोन रिलीज होते हैं. एंड स्ट्रेस कैन बी बायोटिक और एबायोटिक. सपोज ड्राउट हो गया, सूखा हो गया, वो भी एक स्ट्रेस कंडीशन है प्लांट के लिए. या समर्स में बहुत जो एयर चल रही है, तो वो भी एक प्लांट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है. प्लांट टूट के गिर सकते हैं, उनका वाटर लॉस हो सकता है. तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रेस कंडीशंस आर फेस्ड बाय द plants. So they are involved in such kind of thing. And also plant growth hormones inhibit the growth activities. inhibit माने उसको stop करती हैं, रोकती हैं growth activities को, such as dormancy. dormancy means suppose you sow the seed and seed is not germinating, तो दिस कंडीशन इज नोन एज डोरमेंसी. ठीक है, सीड जब जर्मिनेट करने की एबिलिटी लूज कर देता है, दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी. एंड एब्सिशन, दैट मीन्स फॉलिंग ऑफ लीफ एंड फॉलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट्स. ये सारी चीज़ें जो होती हैं फॉलिंग, तो वो सारी चीज़ें एब्सिशन में कहलाती. तो दीज इन दिस कैटेगरी एब्सिसिक एसिड इज़ द वन हार्मोन इन दिस कैटेगरी. तो हम एब्सिसिक एसिड को नेगेटिव हार्मोन के उस पर जानते हैं, नेगेटिव हार्मोन की तरह से जानते हैं. देन देर इज़, वी हैव जस्ट अर्लियर टॉक्ड अबाउट एथाइलिन C2H4. दिस इज़ ऑल्सो अ गैसियस हार्मोन, बिकॉज यू नो दैट एथाइलिन इज़ अ गैस.
तो दिस इज अ गैसियस, ओनली गैसियस हार्मोन, एंड यू कैन कीप इट इन बोथ द कैटेगरीज, मतलब ये आप पॉजिटिव वाले में भी रख सकते हो, ग्रोथ प्रमोटिंग में, एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग, दोनों में रख सकते हो. And basically people would like to categorize them into inhibitor and inhibitor of growth activities. तो बेसिकली इसको इनहिबिटर मानते हैं, तो ज़्यादातर तो इसको इनहिबिटर कैटेगरी में ही रखते हैं, पर आप दोनों में भी रख सकते हो, उसको कैटेगराइज कर सकते हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. तो नाउ बाय नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ग्रोथ hormones are similar, like in our body there are certain hormones present and which help in growth and development of our body. In the same way plants के various parts में भी कुछ chemicals बनते हैं and they are very helpful in the overall growth and development of the body, and they are known as the phytohormones or growth regulators. And you divide it into two categories. One is for growth promotion and another is which responds during the stressful condition of the plant, और वो stressful condition biotic abiotic कुछ भी हो सकती है. So now come to the discovery of plant growth regulators. इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और क्या इनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक इन जनरल, इफ़ यू टॉक अबाउट, तो ऑल दीज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स दे हैव बीन एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड. किसी को जानबूझ के डिस्कवरी खोजने के लिए नहीं की गई थी कि अभी हमें प्लांट हार्मोन्स को डिस्कवर करना है, बट एक्सीडेंटली दे डिस्कवर्ड all the hormones, we can say. So Charles Darwin, you have know the name of the person, Charles Darwin, and his son whose name is Francis Darwin. They both are working on the canary grass, and if there is a diagram of canary, this is the diagram of this type of diagram. So they work on the coleoptile of the, that means the tip of the stem. So they are working on that और वहाँ पर उन्होंने दे हैव गिवन वन साइडेड लाइट. यू कैन सी दैट दे हैव गिवन लाइट इज शोइंग फ्रॉम द एरो. तो दे हैव गिवन द लाइट टू द कोलियोप्टाइल टिप, दैट मीन्स द टॉप ऑफ द स्टेम. तो वहाँ पे उन्होंने एक साइड से उसको लाइट दी, एंड व्हाट दे फाउंड इज दैट द प्लांट स्टार्टेड बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट. तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ वो क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, जिधर से भी उनको लाइट दी जा रही है. दैट मीन्स फोटोट्रॉपिज्म इन शॉर्ट यू कैन से. तो उनको लगा कि कोई चीज़ ऐसी है कि जब हम इसको देते हैं, लाइट देते हैं, तो दिस स्टार्ट्स मूविंग टू शेडेड पार्ट्स. दैट मीन्स सपोज ये कोई चीज़ ऐसे है, ये कोलियोप्टाइल है, एंड यू आर गिविंग द लाइट फ्रॉम हेयर, इधर से आप इसको लाइट दे रहे हो. तो उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हैं जो इधर से मूव होकर के किधर आ गए, इस साइड पे आ गए, कॉन्सेंट्रेट हो गए, और दैट्स वाई ये क्या होने लग जाते हैं, जब ये इस साइड से आ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ बढ़ेगी और ये क्या हो जाएंगे, ऐसे करके बेंड हो जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि ये जो है बेंडिंग वो इस तरीके से होगी, इस साइड होगी ना, लाइट इधर से आ रही तो बेंडिंग इस साइड होगी. तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ है वो शेडेड पार्ट से मूव होगी. अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. सपोज दिस इज़ द कोलियोप्टाइल एंड ही हैज़ गिवन द सनलाइट फ्रॉम हेयर, इधर से उसको सनलाइट हम दे रहे हैं. And when you give the light, what would happen, that there is something which transfers from the shaded part to the illuminated part. तो ये कोई चीज़ इधर थी, ये किधर शिफ्ट हो गई, इस साइड में शिफ्ट हो गई, और दैट्स वाई ये इंक्रीज कर गया लेंथ में, और फिर जब बहुत बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा लाइट की साइड में, फोटोट्रॉपिज्म. तो दैट मीन्स ही सेट कि समथिंग फ्रॉम द शेडेड पार्ट कैन बी ट्रांसमिसिबल टूवर्ड्स द illuminated plant और लाइट वाले प्लांट में. तो ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाई WF वेंट, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था टिप्स कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग. ओट आप जानते हैं सारे, ओट सीडलिंग में इन्होंने इसको सबसे पहले एज अ एक्सपेरिमेंट करके देखा था. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हार्मोन्स विच यू हैव स्टडीड. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अबाउट द Gibberellin. Gibberellin is the another hormone we all know. So there is a disease that is called Bakane disease. So Bakane disease is also known as foolish seedling disease. Foolish seedling. It is all about the Japan वगैरह, वहाँ की जो डिजीज़ है बकाने, वहाँ का ही नाम है, वो इंडियन नेम नहीं है, इट इज़ जैपनीज़. तो वहाँ पर दे ग्रो द राइस एंड दे फाउंड दैट प्लांट्स ऑफ राइस इज़ वेरी टॉल, कि जो राइस के प्लांट थे बहुत लंबे हो रहे थे, एंड उनको लग रहा था कि देन अब ये तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर ग्रेन भी आएगा, बट इट विल नॉट हैपन बिकॉज, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा आपको अगर बड़ी दिख रही है, प्लांट बहुत लंबा हो गया, तो इट डजेंट मीन कि उसके अंदर उतने फ्रूट्स भी आएंगे, मे बी कोई डिजीज़ भी हो सकती है. तो वॉट हैपन्ड देन दैट आफ्टर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ही फाउंड दैट देयर विल बी नो ग्रेन इन इट.
तो कोई ग्रेन ही नहीं था उसके अंदर, तभी उसका नाम रखा फूलिश सीडलिंग। मतलब सारे फार्मर्स जो थे वो क्या हो गए, बेवकूफ़ बन गए। तो देन ही सीड केयरफुली एंड ही फाउंड दैट देयर इज़ अ फंगस दैट नोन एज जिब्रेला फ्यूजिकुराई। एक फंगस उन्होंने नोटिस किया वहाँ पर, और उस फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिकुराई, GIBBERELLA, जिब्रेला, एंड अनदर इज द फ्यूजी क्यूराई। उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक फंगस था, और कुरोसावा इज़ द नेम ऑफ द बायोलॉजिस्ट जो उस पर वर्क कर रहे थे। उन्होंने पाया कि ये जो फंगस है, अगर मैं इसको निकाल के और इसको एक्सट्रैक्ट बना के और उसको वापस एक हेल्दी प्लांट पर डालूं सीड के, तो वो भी इतना ही टॉल हो जाता है और उसमें भी ग्रेन्स नहीं आते। तो उन्होंने लेटर ऑन इस केमिकल को, जो कि ये फंगस में था, उसको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब उसको ग्राइंड करा और निकाला, प्यूरिफाई किया, और उन्होंने पाया कि दिस केमिकल सब्सटेंस इज जिब्रेलिक एसिड। तो बाद में उसका नाम क्या पड़ा, जिब्रेलिक एसिड, जो प्लांट को टॉल कर देता है। लेकिन उसमें सीड वगैरह मतलब कुछ नहीं आ रहे थे, बट टॉल हो जा रहा था प्लांट। तो दिस इज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ द जिब्रेलिन। देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज काइनेटिन, और यू कैन से साइटोकाइनिन्स। तो एफ स्कूज जो थे, एफ स्कूज and some of his colleagues, they are also observing that tobacco stems callus, that means callus means you, I think there is a beaker like structure, and here is a cell, एक सेल है और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स फिल कर देते हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं टिश्यू कल्चर, तो इसमें कुछ केमिकल्स भी डालते हैं। तो ये जो सेल है ये डिवाइड होकर के एक छोटा सा इसी तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है, दैट इज़ कॉल्ड कैलस। ठीक है, और इसी से फिर धीमे धीमे करके पूरा कंप्लीट प्लांट बन जाता है धीरे धीरे से। तो ये मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर नोन एज कैलस, एंड इट स्टार्ट डिवाइडिंग ओनली व्हेन यू ऐड ऑक्सिन्स एंड सम अदर न्यूट्रिएंट मीडियम। जब इसमें ऑक्सिन और कुछ और न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे तो ये ग्रो करेगा। एंड ही नोटिस दैट व्हेन ही एड्स एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ईस्ट और कोकोनट मिल्क और DNA or vascular tissue, he found that this activity, that means this undifferentiation of callus, or you can say differentiation of callus, takes place very fast, क्योंकि differentiate होने लग गए। फिर रूट कैसे बनेंगे, इसी में लीव्स कैसे बनेंगे, वो तभी बढ़ा जब उन्होंने उसके अंदर कोकोनट मिल्क डाला, या DNA डाला, या वेस्कुलर टिश्यू डाला, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला, और जब वो ग्रो किया तो लेटर ऑन दे आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनिन्स एंड फाउंड दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डिवीजन। क्योंकि ये तो कैलस है, ये ऐसे सेल पड़ा हुआ, एक सेल आपने डाल दिया टिश्यू कल्चर में, बाकी न्यूट्रिएंट मीडियम आपने फिल कर दिया, तो व्हाट हैपन देन, अब इसमें रूट भी एक सेल से बननी है, स्टेम भी बननी है, सब कुछ बनना है। तो वो चीज़ तभी बनती थी, ये बहुत फास्ट बनी जब उन्होंने ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, या DNA, ये उन्होंने ऐड किया। तो उनको लगा कि इसमें क्या चीज़ स्पेशल है जो इनके रूट एंड शूट को मतलब क्या बोलोगे, इनको सारों को डिफ्रेंशिएट कर रही है ना, मतलब बन रहे हैं वो, क्लियर आपको दिखने लग गए। तो उन्होंने पाया कि ये साइटोकाइनिन्स है, जिसको उन्होंने शुरू में काइनेटिन्स नेम दिया था, लेटर ऑन वी कॉल्ड इट साइटोकाइनिन्स। नाउ कम टू द अनदर हार्मोन, एंड दिस हार्मोन इज नोन एज you can say abscisic acid. Abscisic acid is a hormone which is negative hormone, we all know. That means it is not helpful in the growth, it inhibits the growth. So many biologists worked on the 3 different kinds of inhibitors. They notice उनको 3 तरह के inhibitors मिले प्लांट्स में जो ग्रोथ को रोकते थे, that are called inhibitor B, abscission 2 एंड डॉर्मिन। ये 3 तरह के उनको केमिकल्स मिले प्लांट्स में जो ग्रोथ को रोकते थे, और लेटर ऑन उन्होंने इन तीनों को ही एक ही नाम दे दिया मिला करके, दैट इज़ कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, ABA। ये कॉमन नाम दे दिया इन तीनों को, अलग अलग नाम देने के बजाय। तो ये तीनों ही ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते थे, उनको रोकते, ग्रोथ को रोकने वाले थे, दैट मीन्स दे आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। नाउ अगेन देयर आर पर्सन नोन एज कजिन्स, एंड कजिन्स उन्होंने कन्फर्म किया कि कुछ एक ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं, वोलाटाइल मीन्स यू कैन से जैसे होती है ना आपकी वाटर वेपर, ठीक है, उस तरह का कोई वोलाटाइल सब्सटेंस है, एंड इट रिलीजेस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंज। ऑरेंजेस, अगर एक टोकरी में फल की बास्केट है उसमें ऑरेंजेस रखें, तो उन्होंने कहा इसमें से कुछ सब्सटेंस निकलता है, वोलाटाइल सब्सटेंस, एंड यहाँ पर अगर बनाना रखे हुए हैं तो ही फाउंड दैट
बनानास जो है वो राइप हो गए, पक गए बहुत जल्दी इसके प्रेजेंस में अगर रखे हुए हैं। तो दैट मीन्स ही फाउंड दैट देयर इज समथिंग रिलीज्ड फ्रॉम द दिस राइपेंड फ्रूट, मतलब इस राइपेंड ऑरेंज से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकल रहे हैं जिन्होंने ये जो बनाना रखा हुआ है इसको बहुत जल्दी से राइप कर दिया, इसको बहुत जल्दी से जो है वो पका दिया, क्योंकि जो बनाने रखे थे वो पहले अनराइप थे, कच्चे थे बनाना, और ऑरेंजेस के साथ रख दिए तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, बहुत जल्दी से पक गए। तो उन्होंने ये पाया कि जो गैसियस सब्सटेंस निकल रहा है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है, दे आइडेंटिफाइड दैट दिस इज इथाइलिन गैस एंड इट इज़ यूजफुल इन द राइपनिंग ऑफ द fruit. So this is all about an introductory thing about the hormones, and in the next lecture we will discuss the physiological effect of the plant growth regulators, where we study about one by one about the hormones and their effect on the various plants and economic importance also. So this is all for today.